Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this fourth day of GST refresher course. Today's topic is input tax credit and block credit under GST. And we have with us our own from CASA team, C. Ankit Garg. Ankit ji, welcome to you as a speaker in this Namaskar, webinar. Sumit ji, thank you. Namaskar. I also welcome to each participant who are joining since Monday, and today is the fourth day. A few participants are taking recording of the sessions we are providing all. And today's topic is, as we know, input tax credit is very much important. We have discussed earlier scope of supply, time of supply, value of supply, and place of supply. Now, main point is how to compute the input tax credit and what are the ineligibility or block credits. So we will discuss in the today's session, and also some circulars which yesterday has been issued that will also be covered by Ankit ji. So once again, welcome to each participant. Now I request Ankit ji to take up the session, and any query you can discuss through chat box, or you can unmute in later stage by the end. Over to you, Ankit ji, for your session. Hello friends, thanks Team CASA, thank you Sumit ji for organizing this complete refresher course. And basically what I wish to say, as we know, as we aware in the GST, when the GST has been enacted from 1st of July 2017, after that 1000 or more notification circulars, GST, it is mandatory for everyone to study on daily basis what are the amendments going on, what are the things going on in the GST. Now today topic we are covering is the input tax credit, and block credit under the GST. So in this we will cover complete section 16. Basically what is allowed, what is not allowed, what you can take a credit, when you can take the credit, we will discuss each and everything. So now moving forward, basically these are some important definitions which I brought to your knowledge, which is mandatory for you to read it. Basically what is input services, what is input tax under the GST. Just hold for a minute, some disturbance is going on. Just hold for a minute. Hold for a minute. हाँ जी, अभी आवाज ठीक आ रही है, पीछे डिस्टरबेंस आ रही थी पहले शायद। अंकित जी ठीक है, परफेक्ट जी। तो आज का टॉपिक आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी हमें जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज जीएसटी की जान आईटीसी है, हमें सभी को पता है। और आउटपुट टैक्स तो हमें क्या देना है, एवरीबॉडी नो, जो एचएसएन के अकॉर्डिंग रेट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट टैक्स आपको देना है। बट आईटीसी इज व्हाट, आईटीसी के सिस्टम बना दिए हैं। आपने 2 पेमेंट भी कर दी वेंडर को, माल ले लिया, माल आ गया, उसके बाद भी 10 चेक्स हैं जो आपको प्रूव करना है कि जो आपका आईटीसी है वो ठीक है। आउटवर्ड पे चेक्स नहीं है। आउटवर्ड पे अगर आपका रेट ठीक है और एचएसएन ठीक है तो अकॉर्डिंगली आउटवर्ड पे जो टैक्स लगना है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। बट आईटीसी के अंदर अगर कुछ भी चूक हो गई तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये दिक्कतें कैसी होती हैं, आईटीसी का जो क्रेडिट डिनाई अगर 5 साल बाद होता है तो इट इज वेरी हार्ड। मतलब 5 साल के एंड पे जब जाके, अभी आप देखिए ना 17-18 की सारी असेसमेंट चल रही हैं, ये आईटीसी 2A के अंदर नहीं आ रहा, ये आईटीसी 16.4 के अकॉर्डिंग इनएलिजिबल था जो आपने ले लिया, ये ब्लॉक क्रेडिट था जो आपने ले लिया, ये आरसीएम क्यों नहीं पे करा, ये आईटीसी आपने रिवर्स क्यों नहीं करा। तो अब उस आईटीसी के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है कितने हार्ड हो जाते हैं। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट पेनल्टी मिला के इट इज जस्ट डबल द आईटीसी विच यू हैव टेकन, which the client has been availed.
So ITC is that much important, and I no need to say that how much important is ITC, because the viewer know about the importance of the ITC. With regard to input tax credit, input means a goods other than basically capital goods used or intended to be used by a supplier in course or furtherance of the business. So in each and every definition, we will read that in course or furtherance of the business. Now, with regard to input services, means any services used or intended to be used by a supplier in course or furtherance of business. So it is very important कि ITC आपको कब मिलेगा. ITC की बहुत बेसिक कंडीशन है कि आपका ITC आपको मिलेगा जब आप वो क्रेडिट या वो गुड्स और सर्विसेज जो आपने लिए जिसके ऊपर GST लगा वो आपके बिजनेस में या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होगा. और उसके बाद बहुत सारी चीजें हम चेक करेंगे. यानी मेन क्रक्स ITC का है कि वो जो ITC आपके पास आया वो इन ड्यू कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर यूज होना मैंडेटरी है. अगर कोई भी चीज आपने पर्सनल यूज करने के लिए ली है तो उसका ITC अलाउड नहीं है. ये इसी डेफिनेशन से ही क्लियर है. इनपुट टैक्स की डेफिनेशन दी गई कि इनपुट टैक्स क्या है. इनपुट टैक्स कहा गया कि इंटीग्रेटेड टैक्स जो इंपोर्ट में आप पे करते हो, जो आप बेसिकली सेंट्रल टैक्स पे करते हो, स्टेट टैक्स पे करते हो, यूनियन टेरिटरी टैक्स पे करते हो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड इंक्लूड जो इंपोर्ट पे करना है, जो रिवर्स चार्ज पे करना है, वो सब इनपुट टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया. नाउ द टैक्स, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. आइटम मिलेगा इसका जब मिलेगा, बट ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. जब आप लीगल बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. बिकॉज आप जब रिफंड क्लेम करते हैं, आपको पता होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी में अभी तक इनपुट का क्रेडिट अलाउड था, इनपुट सर्विसेज का अलाउड नहीं था. तो यू शुड नो व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इनपुट सर्विसेज. एंड कैपिटल गुड्स का तो अलाउड ही नहीं है इन एक्सपोर्ट ऑल्सो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST and in the inverted duty also. So it is mandatory for you to know about all these definitions. What is input, input services. Input tax credit means the credit of input tax. It is very simple, the credit of input tax. We have already read it, what is input tax. So capital goods means a goods, the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC and which are used or intended to be used in course of furtherance of business. So पहली कंडीशन सेक्शन 16 भी कहता है, पहली कंडीशन हमारी मैंडेटरी ITC को क्लेम करने के लिए हमने क्या कंक्लूड करी, दैट द ITC वुड बी अवेलेबल ओनली इफ द इनपुट सर्विसेज एंड द कैपिटल गुड्स हैज बीन यूज्ड और टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. व्हाट डज इट मींस? नाउ बेसिकली व्हाट आई से टू यू, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर ITC इज मैंडेटरी टू नो बाय द व्यूअर्स. जब भी आप ITC में फंसे तो आपको दो सेक्शंस सबसे ज्यादा काम आएंगे. सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट. सेक्शन 16 आपको कंडीशंस देता है कि आपको ITC कब कब मिलेगा. सेक्शन 17 आपको ब्लॉकिंग ऑफ ITC क्रेडिट के बारे में बताता है. 18 कुछ स्पेशल सिचुएशंस के बारे में बताता है. 19 ITC क्रेडिट के बारे में बताता है, जो कि जॉब वर्क के, अगर आप जॉब वर्क को आप जो ट्रांसफर्स कर रहे हैं, जो कैपिटल गुड जॉब वर्किंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 16. सेक्शन 16 IGST एक्ट, CGST एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन and restriction as may be prescribed in manner specified in section 49 be entitled to take credit of the input tax credit charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in course or furtherance of the business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. यहाँ कहता है कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो कि इंटेंडेड और यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज द मैंडेटरी कंडीशन, and the amount has been credited to the electronic credit ledger is also required. Somebody mic is unmute. Sumit ji, please. Puneet ji, mic is unmute. I think so.
Now moving forward. Now section 16 subsection 2, which is very important, which is very important with regard to litigation, which is very important with regard to many other things. So section 16 subsection 2 what say? It is notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to take credit of any input tax in respect of any supply of goods or services brought to him unless, ये कहता है कि आपको क्रेडिट जब भी मिलेगा जब ये नीचे की सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। क्या कहता है? ये ही का मतलब है जो रिसिपिएंट है, जो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को लिया है जिसने, उसके पास ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रीड रूल 36 एंड इट्स प्रोवाइजो। इट मीन्स व्हाट कि आपके पास ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। यानी 9(3) के अंदर जब आप टैक्स पे करते हो आरसीएम के अंदर, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या है? उसके अंदर डॉक्यूमेंट है आपका चालान, आपका इनवॉइस, जो सेल्फ इनवॉइस आप रेज करेंगे वो, प्लस आपको इंपोर्ट करते हो जिसके ऊपर आईजीएसटी पे करते हो, तो उसके अंदर बिल ऑफ एंट्री इज योर टैक्स पे एंड इट्स चालान इज योर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। So he is in the position of tax invoice debit note issued by the supplier registered under this act. This is the first condition. तो आपको पता होगा 2A 2B, पहले आप 2A के लिए सुनते आ रहे थे कि 2A में क्रेडिट आएगा जब भी मिलेगा। उसके बाद बहुत सारी लिटिगेशन हुई, बहुत लोगों ने फॉलो करा, बहुत लोगों ने फॉलो नहीं करा। 2A के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी, तो क्रेडिट सबने अपनी मनमर्जी से लिया एक लेवल पर। मनमर्जी से क्या, जो किताबों में अवेलेबल था वो क्रेडिट बंदों ने लिया। 2A में किसी ने 2A फॉलो करा, किसी ने 2A फॉलो करा तो उसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट रखा। कुछ क्रेडिट जो 2A के अंदर आ रहा था वो सारा का सारा उठा के ले लिया, चाहे वो गुड्स आए नहीं आए। तो सेक्शन 16(2) बहुत सारी चीजों को आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, कि आपको क्रेडिट के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि कहता है कि भाई क्रेडिट हम आपको तभी देंगे जब ये चीजें पूरी होंगी। सेक्शन 16A हमने देखा कि हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, हमारे पास डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि अलाउड है टू टेक द क्रेडिट। सेक्शन 16AA की अगर हम बात करें तो इसमें कह दिया गया बेसिकली, अगर हम बात करें सेक्शन 16AA क्यों इंसर्ट हुआ, आपको पता है बहुत सारी लिटिगेशन चल रही थी। लिटिगेशन क्या थी कि जी 2B के अंदर जो आप वो क्रेडिट हम कैसे माने कि भाई लॉ की क्या बैकिंग है उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 16AA इंसर्ट करा फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर, उसे नोटिफाई करा, और 1 जनवरी 2022 से आपको पता है कि 2B इज मैंडेटरी। अब आपके पास कोई बैकिंग नहीं है कि आप ये कहें कि जी जो 2B के अंदर क्रेडिट नहीं आ रहा, जो मेरी किताब के अंदर क्रेडिट आ रहा है मैं वो लूंगा, 2B से मेरा कोई लेना देना नहीं है, या 2A तो अब खत्म ही हो गया इसलिए मैं 2A डिस्कस नहीं करा, या फिर 2A से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द एक्ट। प्रीवियसली देयर इज नो 16AA इन दिस सेक्शन 16, and accordingly no legal backing is there in the law which allow that the credit should be available through a 2A only. हाँ, रूल 36(4) हम सभी को पता है डाला गया, जिसके अंदर कहा गया कि भाई क्रेडिट हम जो अलाउ करेंगे जो 2A के अंदर आ रहा है उसका 120% अलाउ करेंगे। सबसे पहले ये कहा गया, फिर वो 120% को डिक्रीज करके 110% कह दिया गया, फिर वो 105% कह दिया गया, और फिर आज की तारीख में कहते हैं जो 2B के अंदर आ रहा है हम वही क्रेडिट आपको देंगे। तो सेक्शन 16AA हम एक बार पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 16AA कहता है द डिटेल ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए, जो कि क्लॉज ए में कहे गए वो that has been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such detail has been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified in section 37, and accordingly क्या कह दिया गया, मैंने लिखा भी है, इंसर्शन ऑफ क्लॉज AA इन सेक्शन 16(2) and amendment to rule 36(4) by notification 40/2021 dated 29 provide prospective legal backing for the reflection of invoices and debit note in GSTR 2B
but some were challenging ultra-vires of Rule 36(4) prior to the implementation of amendment. Hence, the amendment being prospective in nature and the validity of Rule 36(4) and the status of 2A prior to the amendment are highly disputed. What does it mean? This means कि that जब गवर्नमेंट ने 16AA इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं लीगल बैकिंग ऑफ 2A इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं मिसिंग थी. तो जो 2A के नोटिस पहले के आ रहे हैं हमारे पास 1 जनवरी 2022 से पहले के जो नोटिस आ रहे हैं, इवन 17-18 तक के नोटिस आ रहे हैं कि 2A के अंदर नहीं आ रहा था, आपने क्रेडिट ले लिया तो क्यों ना हम इस क्रेडिट को डिसअलाउ करें. तो यू कैन राइट दिस कि सर or ma'am, please let us know if 2A is applicable and 2A is as per the law, as per the act of CGST Act, then why there is a requirement that 16AA has been inserted by the government via notification number 39/2021 dated 21 December 2021. This is one legal backing you have. Because 36(4) is there in the law. नवंबर 2019 में 36(4) इंसर्ट हो गया था. और 36(4) बट इंटरप्रिटेशन लॉ की क्या कहती है कि एक्ट रूल्स कैन नॉट ओवर रूल द एक्ट. तो एक्ट के अंदर चीज का होना, लॉ का होना मैंडेटरी है. रूल इज द पार्ट ऑफ द एक्ट बट इट कैन नॉट ओवर रूल द एक्ट. सो 36(4) आया, बट 36(4) की भी लीगल वैलिडिटी चैलेंज हो रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट 16AA लेके आए. अब हम बात करें, हमने 2 कंडीशन 16 सबसेक्शन 2 की पढ़ी गया कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा 16AA जो कहता है कि 2B के अंदर आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 16 हमने ए पढ़ा, AA पढ़ा, अब हम बी की तरफ जा रहे हैं. That he has received the goods or services or both. यही एक ऐसा क्लॉज है जिसके चलते फेक इनवॉइसिंग की हम बातें करते हैं. जीएसटी ऑफिसर कहते हैं हाँ जी ठीक है 2B के अंदर क्रेडिट आ रहा है आपका, मान लिया. आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस भी है, मान लिया. बट प्रूव इट दैट यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब अगर आपने किसी से या आपने सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, आपके क्लाइंट ने किसी से भी बिना गुड्स और सर्विसेज के लेकर उसने सिर्फ बिल लिया है, तो द क्रेडिट इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ. और अभी हम सर्कुलर भी डिस्कस करेंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा. तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी. पहली कंडीशन पढ़ी ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी 16AA के अंदर कि 2B के अंदर वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होना चाहिए. थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अच्छा, इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई हमारा गुड्स बिल टू शिप टू के अंदर सीधे कस्टमर के पास पहुंच गया, तो इसमें प्रोवाइजो है कि हाँ जी वो माना जाएगा. सेकंड प्रोवाइजो है जो कहता है माना जाएगा कि वो गुड्स आप ही के पास आया है. फर्स्ट प्रोवाइजो है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एजेंट और अदरवाइज during or before either way of a supplier to any person. बेसिकली बिल टू शिप टू को लीगल जिससे आईटीसी आपको मिले तो वो 1 और 2 दोनों क्लोज डाले गए. वो गुड्स की भी बात करते हैं, सर्विसेज की भी बात करते हैं. पर बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर आपके पास क्रेडिट जो आ रहा है वो क्रेडिट माल आपके पास नहीं आ रहा, बट आपकी डायरेक्शन पे दूसरे बंदे को रिसीव हो रहा है, तो भी आपको क्रेडिट ये माना जाएगा कि वो गुड्स और सर्विसेज आपको मिले हैं. कंडीशन हमने पढ़ी 16 का सबसेक्शन ए पढ़ा हमने. कहता है कि आईटीसी हम जब अलाउ करेंगे तब आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो. सेकंड हमने पढ़ी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो. थर्ड हमने पढ़ी कि गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव होनी चाहिए एक्चुअल में. नाउ मूविंग टू क्लॉज सी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, section 41, section 43A, the tax charge in respect of such supply can be actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of said supply
and he has furnished the return under section 39. बेसिकली थर्ड सी क्लॉज क्या कहना चाह रहा है? सी क्लॉज आपको कहता है कि जो जिससे आपने माल लिया, जो वेंडर है जिसके बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, उसने उस आईटीसी की उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी हो, आइदर बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग कैश और बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी। लास्ट कंडीशन 16(2) की जो कहती है कि आपने अपनी रिटर्न, इसमें ही का मतलब आपका वेंडर नहीं है, आपका क्लाइंट खुद है। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 के अंदर उसने रिटर्न फाइल कर दी हो। सबसे पहली कंडीशन पड़ी, हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, हमारे पास ओरिजिनल डेबिट नोट होना चाहिए। अच्छा, अगर जहां ई इनवॉइस एप्लीकेबल है वहां ई इनवॉइस होना चाहिए। मतलब इसमें ये भी लिखा है एज द रूल्स, एज पर द रूल प्रिस्क्राइब। अच्छा, रूल 36 के अंदर, सॉरी 36 कह रहा हूँ, जो रूल के अंदर बेसिकली इनवॉइस रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं एज पर द लॉ। उसके अंदर कुछ 5 कंडीशंस कही गई कि ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती है तो हम मानेंगे कि वो ओरिजिनल इनवॉइस इज ओके एज प्रिस्क्राइब्ड है। वो 5 कंडीशन क्या है कि भाई जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जीएसटी का रेट होना चाहिए, जीएसटी कितना चार्ज हुआ वो होना चाहिए, और आपका जो इनवॉइस है उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बताई दी, आपका एड्रेस होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आपकी हैं और बाकी चीजें नहीं है तो आपका वो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट बेसिकली ओरिजिनल इनवॉइस वैलिड माना जाएगा और आपको आईटीसी अवेल होगा। उसके अलावा ई इनवॉइस जब से आया है तो गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट कर दी है। अब आपके पास अगर किसी के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और उसने ई इनवॉइस इशू नहीं करा तो भी आपको क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा। तो ई इनवॉइस इज ऑल्सो मैंडेटरी टू क्लेम द आईटीसी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने कंडीशंस पढ़ी। पहली पढ़ी हमने ओरिजिनल इनवॉइस, सेकंड हमने पढ़ी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 2B के अंदर अभी 2 एरर भी आए अप्रैल में, मई में, हम सभी को पता है। अप्रैल के अंदर 2B रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी। मई के अंदर कुछ इनवॉइसेस डबल आ रहे थे, अप्रैल में भी आ रहे थे, मई में भी आ रहे थे, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई। बट स्टिल द लॉ इज देयर, यू हैव टू सी द 2B। अच्छा, 2B में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा जिसके अंदर आपको क्लियर होगा क्या 2B के अंदर जो भी आ रहा है वो मुझे अलाउड है टू क्लेम द क्रेडिट। As per me, the answer is no. It is not allowed that you can claim the ITC as it is. बेसिकली 2B के अंदर आ रहा है तो कुछ भी उठा के ले लो। हमने सेक्शन 16 की कंडीशंस पढ़ी हैं, वो क्या है? आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए पहली, दूसरा 2B के अंदर होना चाहिए, माना उसमें लिखा है कि हाँ जी 2B के अंदर आ गया। थर्ड कंडीशन आपकी क्या थी कि दैट ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ आ जानी होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर कुछ आंसर्स भी दिए जाएं, सब लोग आंसर करें तो जिससे क्या इंटरेक्टिव रहेगा सेक्शन। बेसिकली एक एग्जांपल हम लेते हैं 30 जून का, आज हम 7 जुलाई को बैठे हैं। जुलाई का जब हम 2B देखते हैं तो उसके अंदर एक 30 जून का इनवॉइस रिफ्लेक्ट होता है जिसके अंदर 1 लाख रुपए का क्रेडिट आ रहा है, बट उसका जो मुझे गुड्स रिसीव हुए या सर्विसेज रिसीव हुई वो मुझे 4 जुलाई को रिसीव हुई। तो मैं व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा, मैं आंसर चाहूंगा, क्या क्रेडिट आपको किस मंथ में मिलेगा? उसका क्रेडिट आपने सेक्शन 16 पढ़ा, किस मंथ में मिलेगा? आंसर यस नो नहीं। आयुष जी आंसर मुझे चाहिए जून या जुलाई। प्रीतम जी ने कहा जून, प्राची जी ने कहा जुलाई, मनीष चौधरी जी जुलाई, और बाकी व्यूअर्स अपनी मर्जी से देख लीजिए सर, जो आंसर है डाल दीजिए। पुनीत जी ने कहा जुलाई। सो बेसिकली द आंसर इज जुलाई, बिकॉज हमने जो कंडीशन पढ़ी बी क्लॉज सेक्शन 16 का, वो ये कहता है कि गुड्स आपके पास आ जाने चाहिए। एक्साइज के अंदर एक रूल हुआ करता था कि जब गुड्स फैक्ट्री के अंदर एंटर होंगे तब आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमें क्रेडिट दो 2B के अंदर जून मंथ था, वो क्रेडिट हमें जुलाई मंथ में क्लेम करना होगा, और जुलाई मंथ की 3B जब हम फाइल करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त
तब उसका क्रेडिट यूटिलाइज आप लीगली करना चाहिए आपको। अगर आप उसका 2B में, बिकॉज वो 4A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है 3B में, और आपने उठाया और क्रेडिट ले लिया, इट मींस दैट इज नॉट एज पर द लॉ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टैक्स उसने पे कर देना होना चाहिए। उसका क्या है, अगर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये डीम्ड हम मानते हैं कि उसकी लायबिलिटी है, उसे टैक्स पे करना है। बट अगर लीगल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो जब तक 3B फाइल नहीं होती तो मेरा C क्लॉज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मेरा C क्लॉज माना जाएगा कि वो अधूरा है, वो टैक्स पे नहीं हुआ। बट कुछ इंटरप्रिटेशन है जो लॉ की ये कहती है कि अगर उसने 1 में डाल दिया तो इट इज डीम्ड कि दैट द टैक्स हैज बीन पेड। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या है, D क्लॉज, जो ये कहती है कि रिटर्न आपकी फर्निश होनी चाहिए सेक्शन 39 के अंदर। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक क्वेरी, कुछ क्वेरी आई, कुछ नोटिस आए। वो नोटिस क्या है अभी हम 16(4) पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास, मेरा एक क्लाइंट है, उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया, उसने बहुत सारी परचेजिंग करी, और परचेजिंग करने के बाद उसका बिजनेस कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गया। अब उसके पास आईटीसी आ रहा था, आईटीसी उसकी बुक्स में आ रहा था, बट उसने जीएसटी की रिटर्न भी अपनी फाइल नहीं करी। डिपार्टमेंट ने 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसके यहाँ सर्वे किया और पाया कि इसके यहाँ अच्छा खासा आईटीसी आ रहा है, बट ये इसने क्लेम नहीं करा, इसने रिटर्न नहीं फाइल करी। तो 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी फिर मिलेगा नहीं अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। अभी हम 16(4) और डिस्कस करेंगे, उसका टाइम फ्रेम है। तो रिटर्न फाइल करना और आईटीसी क्लेम करना उसके अंदर इज मैंडेटरी टू हैव द क्रेडिट इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा, एक प्रोवाइजो, अब कुछ प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हमने 5 कंडीशन तो पढ़ ली, हमने ए पढ़ा, ए पढ़ा, हमने बी पढ़ा, हमने सी पढ़ा, हमने डी पढ़ा। ये 5 कंडीशन अगर पूरी है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। खाली कि आपके पास इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी है और आप कहें कि नहीं, मैं, मुझे क्रेडिट दे दीजिए, एज पर द लॉ दैट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। सो 5 कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग सबको क्लियर है। अब इसके कुछ प्रोवाइजो हैं। उसके प्रोवाइजो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बंदे ने गुड्स लिया या सर्विसेज ली, उस वेंडर ने ओरिजिनल इनवॉइस भी दे दिया, उस वेंडर ने 2B के अंदर भी आ गया आपका, आपके पास गुड्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गए, आपने, उस बंदे ने रिटर्न फाइल भी कर दी, 3B फाइल कर दी, टैक्स पे कर दिया, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, मान लिया आपको क्रेडिट मिल गया। बट प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supplies on which tax is payable on the reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the ITC shall be added to the output liability along with the interest thereon in such manner as may be prescribed. इसका मतलब क्या है, आपने गुड्स ले लिया, सारी कंडीशंस जो 16 सबसेक्शन 2 के सब क्लॉजेस की थी वो पूरी कर ली, बट एक प्रोवाइजो है, वो कहता है कि आपने 180 दिन के अंदर आपने फेज टू पे विद इन 180 डेज अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी तो आपका जो क्रेडिट आपने अवेल किया वो आपको रिवर्स करना है एज पर द लॉ। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट, जो मैंने देखा है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने कोई नोटिस नहीं देखा कि जीएसटी डिपार्टमेंट इस प्रोवाइजो के अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है। बट इन द कमिंग टाइम टू कम दे विल आंसर दिस इन द ऑडिट, दे विल आस्क द लिस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग। और इवन अभी एक नोटिस आया जिसमें मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आपने किस किस पार्टी से लिया परचेज, आईटीसी रजिस्टर दीजिए और उसकी पेमेंट कब कब आपने करी वो भी बताइए। तो ये प्रोवाइजो की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन आती है जो कहती है फेज टू पे। फेज टू पे की इंटरप्रिटेशन जो ली जा रही है, अगर आपके पास गुड्स और सर्विसेज आए और आपने उन गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट नहीं करी और आप पेमेंट से चूक गए तो आपको क्रेडिट अलाउ जो हुआ था वो आपको कायदे में रिवर्स करना है 180 दिन के बाद।
ठीक है जी। दूसरा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट। अच्छा, हमने कहा जी रिवर्स तो करना है। अब रिवर्स करने के चलते 16(4) अभी हम नीचे पढ़ेंगे, सेक्शन 16 का 16(3) पढ़ेंगे, 16(4) पढ़ेंगे, जो कहता है कि आप जो क्रेडिट है वो आप क्रेडिट सितंबर तक ले सकते हैं, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द सितंबर। तो जी अगर मैंने आज रिवर्स कर दिया, इस क्रेडिट का मेरे क्या होगा? तो इसके लिए प्रोवाइडेड, इसको पूरा पढ़ा गया कि अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो वो कहते हैं इस क्रेडिट को आप रीअवेल कर सकते हैं और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब कि मैं एक एग्जांपल व्यूअर्स को देना चाहूंगा। मेरे क्लाइंट ने 100 रुपीज की परचेजेस करी, उसके ऊपर 18 रुपीज जीएसटी लगा, उसने रिटर्न फाइल कर दी, सेक्शन कंडीशन फुलफिल कर दी। अब उसने 180 दिन के अंदर उसकी पेमेंट नहीं करी, तो मुझे कितना क्रेडिट रिवर्स करना है? 18 रुपए। और उसका मुझे क्रेडिट कब तक मिल सकेगा? मैं उसका क्रेडिट अप टू इंफिनिटी एनी टाइम तक मैं क्लेम कर सकूंगा। लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसका रिक्लेम आप कभी भी कर सकते हो। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, व्हाट इट से। ये बड़ा सिंपल कहता है जी आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे जो आपने कैपिटलाइज करे हैं, तो सिंपल चीज ये है कि या तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करें या फिर आप उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें, आपकी इच्छा है, जो आप लेना चाहें वो ले लें। व्हाट डज इट मीन? इट, अगर प्रैक्टिकली बात करें एज एन अकाउंट्स पर्सन, तो हम कहेंगे कि इसकी एंट्री भी नहीं डल सकती जी। तो इट मींस 16 सबसेक्शन 3 कहता है कि आपको, अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया किसी एसेट के ऊपर, आप कहते हो नहीं जी मुझे तो आईटीसी भी दे दो, तो वो अलाउड नहीं है। 16 सबसेक्शन 3 उसे क्लियरली कहता है कि आप या तो डेप्रिसिएशन लीजिए या आप उसका आईटीसी क्लेम कर लीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आप लोगों को जो पढ़ा उसे रिपीट कराता रहता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 16, उसके हमने फिर पढ़ा सेक्शन सबसेक्शन 1, जो कहता है फर्दरेंस और इंटेंडेड टू बी यूज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। हमने 16(2) पढ़ा, जो कहता है, जो रिस्ट्रिक्ट करता है क्रेडिट को। आयुष जी, जो रिकंसिलेशन की आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए भी मैं अभी आपको नीचे जो स्लाइड है मेरी उसके अंदर कवर है इसका आंसर, तो मैं आपको वो बताऊंगा, उससे आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, उससे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाए। 16(1) हमने पढ़ा, 16(2) हमने पढ़ा। 16(2) हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, कहता है ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। 16AA कहता है 2B के अंदर आना चाहिए। 16B कहता है कि आपके पास गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव होनी चाहिए। 16C कहता है आपके वेंडर ने टैक्स पे कर देना होना चाहिए। सेक्शन 16D कहता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद दो प्रोवाइजो हमने पढ़े, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया इन सब कंडीशन के चलते। फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर आपने पेमेंट नहीं करी, आपके क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी 180 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ही फेल्स टू पे, देन ही हैज टू रिवर्स द क्रेडिट। और क्रेडिट कैसे रिवर्स करेगा? अच्छा, इस एग्जांपल में मैं ये लेता हूं और मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में आंसर। जो मेरा एग्जांपल था 100 रुपीज का आईटीसी, सॉरी 100 रुपीज का गुड्स बाय करा, उस पर 18 रुपीज का आईटीसी था, और उसने सिर्फ पेमेंट 180 दिन के अंदर 50 रुपए की करी, तो मुझे आईटीसी कितना रिवर्स करना है? बहुत सिंपल है, चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा सब व्यूअर्स आंसर करें। 30 आईटीसी अमाउंट बोल रहा हूं मैं बेसिकली 100 रुपीज। 9, प्राची जी बिल्कुल ठीक है, 9 प्रकाश जी। बेसिकली इसमें ना, मतलब आपको कंप्लीट रिवर्स नहीं करना, जितना आपने पेमेंट करा है उसका प्रोपोर्शनेट आपको क्रेडिट अलाउ होगा। अब मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, इसमें दोबारा आंसर चाहता हूं और इंटरेस्टिंग बना देता हूं। कर दी, जीएसटी की पेमेंट नहीं करी, तो कितना क्रेडिट अलाउ होगा?
उसने 100 रुपीज गुड्स की पेमेंट कर दी, 18 रुपए जीएसटी की पेमेंट नहीं करी। मैं आंसर चाहूंगा व्यूअर से, तो कितना क्रेडिट अलाउ होगा? आयुष जी 0, 18 विल गेट रिवर्स। प्राची जी बेसिकली जब हम बात करें प्रोपोर्शनेट, तो हम यही मानेंगे, हमारा क्लाइंट भी यही मानेगा कि जो 100 रुपीज है उसने दोनों चीजों के लिए दिए हैं, तो आप 100 को 118 से डिवाइड करेंगे। आप ये मानेंगे कि 100 रुपीज की जो पेमेंट हुई, जब मैं आपसे बात कर रहा था 50 रुपीज की पेमेंट की, तो मैं बात कर रहा था 50 + 9 रुपीज, यानी 59 रुपीज की पेमेंट उसने करी है। तो 100 रुपीज की जब उसने पेमेंट करी, तो 100 को आप 118 से डिवाइड करेंगे, तो 15.25 रुपीज का आपको क्रेडिट अलाउ होगा। अश्विन जी, मैं आपकी क्वेरी आपने दी है, कैन आईटीसी बी क्लेम ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज एक्स। अश्विन जी, मैं आपको बेसिकली अनम्यूट करके क्वेरी आंसर करूंगा, इस सेशन को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। 100% आंसर करूंगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर उसकी सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस, ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, मुझे थोड़ा सा और एलेबोरेट आपकी क्वेरी चाहिए होगी, तो मैं अनम्यूट करके आपकी क्वेरी सुनूंगा और देन आई आंसर यू। डोंट वरी सर, आप हमारे पुराने और सीनियर व्यूअर हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेरी सर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ये इसमें लिटिगेशन भी कहता है कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2021 की। कोई क्लाइंट ऐसा है जिसने 2021 की रिटर्न फाइल नहीं करी किसी भी कारणों से। अब उसकी रिटर्न के अंदर दो पार्ट है, एक आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी है, और एक इनपुट जीएसटी है, आईटीसी है। अब डिपार्टमेंट ने उसे अलाउ करा कि आज वो रिटर्न फाइल कर दे, और उसने अपनी 3B और 1 विद लेट फीस फाइल कर दी, और 3B के अंदर उसने आउटवर्ड टैक्स दिखाया 100 रुपीज, उस पे जीएसटी दिखाया 18 रुपए, और नीचे 50 रुपए पे उसने आईटीसी लिया, और 9 रुपए, सॉरी 50 रुपए की उसने गुड्स बाय करे, और 9 रुपए का उसने आईटीसी पे करा, तो और 9 रुपए उसने कैश में पे कर दिए गवर्नमेंट को। नाउ सेक्शन 16(4) एक टाइम लिमिट देता है। डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस शेयर कर दिया, कहा ठीक है जी, रिटर्न आपने फाइल कर दी, बट एज पर 16(4) सबसेक्शन we cannot allow you to claim the ITC for the financial year preceding the year, आपके पुराने साल का सितंबर के बाद, सितंबर की ड्यू डेट के बाद हम आपको आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। मैं इसे एक बार पढ़ देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं इसे। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for the supply of goods or services, or both, after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, that is 30। आज अब ये जो सितंबर की ड्यू डेट थी, इस ड्यू डेट को हम 20 अक्टूबर जनरली मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो 2021 का मैं क्रेडिट 20 अक्टूबर 2021 तक अगर मैं रिटर्न गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 16(4) इंटरप्रिटेशन। बट अब लास्ट जो बेसिकली अमेंडमेंट आई है, बेसिकली उसे अमेंड कर दिया गया है। अब ये ड्यू डेट की जगह 30 नवंबर कर दिया गया है, यानी अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्रेडिट अगर कुछ छूट जाता है रिटर्न में क्लेम करने से, तो वो आप नवंबर 30 तक जो रिटर्न फाइल करेंगे आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम बात कर रहे हैं 20-21 की, सॉरी 21-22 की। और ये बट हालांकि 30 नवंबर अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, तो मैं होप करता हूं कि गवर्नमेंट उससे पहले 30 नवंबर से पहले से नोटिफाई कर दे। Following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। अच्छा, किसी ने कहा कि मैंने एनुअल रिटर्न भरी दी, मैंने तो एनुअल रिटर्न 30 नवंबर से पहले भर दी, या मैंने तो एनुअल रिटर्न सितंबर से पहले भर दी और मेरा क्रेडिट रह गया था जी, तो भी आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि whichever is earlier है। यानी दो लिमिट्स हो गई आपकी,
आपकी ड्यू डेट ऑफ सितंबर अभी क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ 30 नवंबर, तो हम वही पढ़ेंगे, यानी 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी आप दोनों में से पहले कर देंगे उसके बाद आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने एनुअल रिटर्न जुलाई में फाइल कर दी तो आप पुराने साल का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो एनुअल रिटर्न के वक्त हम ध्यान रखते हैं कि सारा कुछ रिकंसाइल हो, तभी हम उसका आईटीसी क्लेम करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा 17-18 के लिए इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर मार्च 19 कर दिया गया था, बिकॉज 17-18 फर्स्ट ईयर था, यानी उसके अंदर ये अमेंडमेंट फिर डाल दी भी गई कि इसे 30 सितंबर की सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट न पढ़कर आप इसे मार्च 16 17-18 की अगर कोई नोटिस आया है तो उसके अंदर ये प्रोवाइजो आपको बहुत काम आएगा। व्हाट डज इट मीन्स आई एक्सप्लेन यू। 17-18 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया बंदे ने, रिटर्न फाइल नहीं करी, बट उसने अपनी रिटर्न जो फाइल करी मार्च 2019 से पहले फाइल कर दी, तो मार्च 2019 से अगर उसने पहले रिटर्न फाइल कर दी तो उसका आईटीसी आपको अलाउ होगा। तो आप इसको ध्यान रखें अगर कोई नोटिस आता है आपके पास 17-18 का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसा कि जीएसटी काउंसिल ने अभी अमेंड भी कर दिया, रिकमेंड भी कर दिया, सेक्शन 73 के अंदर जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाकर 2023 तक बढ़ा दिया गया है, तो आपको 2023 तक नोटिस आ सकता है। तो ये आप मान के चले अगर 17-18 का कोई नोटिस आपको आता है विद रिगार्ड टू 16(4) तो आप इस प्रोवाइजो का ध्यान रखें। हमारी कंडीशंस जो क्रेडिट की थी, मूविंग फॉरवर्ड हमने देख ली कंडीशंस। हमारी 5 कंडीशन थी 16 सबसेक्शन 2 के अंदर। फिर हमने प्रोवाइजो पढ़ा पेमेंट का कि 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। फिर हमने प्रोवाइजो फिर हमने 16(3) पढ़ा जिसके अंदर कहा गया या तो डेप्रिसिएशन का क्लेम करें या फिर आप जीएसटी क्रेडिट क्लेम करें। फिर हमने पढ़ा 16 सब सेक्शन 4 जिसके अंदर कहा गया कि अगर आपको आईटीसी लेना है पुराने ईयर मतलब बेसिकली प्रीसीडिंग ईयर का, तो आप वो मैक्सिमम आप नेक्स्ट ईयर के अभी सितंबर की ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 के अंदर आप यानी 20 अक्टूबर तक आप उसे क्लेम कर सकते हो, उसके बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द सीमलेस फ्लो ऑफ द जीएसटी व्हिच वी हैव स्टडीड व्हेन द जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। जब बोला गया सीमलेस फ्लो, तो सीमलेस फ्लो जैसे हम जाते हैं ना हाईवे पे, टोल टैक्स आता है जहां हमें रुकना पड़ता है, हालांकि अब फास्टैग के बाद हमें कम रुकना पड़ता है, प्लस बीच में बैरियर्स आते स्पीड ब्रेक। तो ये हमारा आपको पता होगा आईटीटीसी ने एफएक्यू इशू करा फॉर क्लेमिंग ऑफ द आईटीसी, और आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर उसके अंदर दिया गया है, तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा उसके अंदर। बट वो पुराना था, कुछ अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़े उसे। तो एक क्वेश्चन उसमें से लिया है मैंने, आप लोगों से चाहूंगा कि आंसर दें आप लोग भी। A vendor has paid GST on tax invoice issued to the registered person. However, while filing Form GSTR1, he mistakenly entered wrong GSTN of the registered taxable person. यानी कि 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। Due to limitation of the portal, he cannot rectify this error subsequently, and this result in the ITC not getting reflected in registered person form GSTR 2B. Whether such registered taxable person can claim ITC in given case. मतलब क्या है कि मेरा सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है बट मेरा आईटीसी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, क्या मुझे क्रेडिट अलाउ हो जाएगा जीएसटी का? तो उसका आंसर क्या दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द केस लॉ, जो मैंने आपको बताया भी, मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए कि 1 जनवरी 2022 से पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, क्योंकि सेक्शन 16AA नहीं था, तो लॉ एक्ट में ही नहीं लिखा कि 2B 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होना मैंडेटरी है। नाउ तो एक्ट के अंदर ही नहीं लिखा, 16AA के अंदर ही 16AA ही बाद में इंसर्ट हुआ, 1 जनवरी 2022 से इंसर्ट हुआ 16AA। 36/4/2019 के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ। रूल्स हम कहते हैं ओवर रूल नहीं करते एक्ट को, तो वो सारी बातें हमारे एफएक्यू के अंदर भी आंसर किया गया कि उन सब की जो नोटिस आता है और अकॉर्डिंगली आप इसका बेनिफिट इन द टाइम टू कम ले पाएंगे। दो
जीएसटी अपील के अंदर आपको शायद इसका बेनिफिट ना मिले, बट इन अबव यानी हाई कोर्ट के अंदर, अभी ट्रिब्यूनल तो मैं कैसे कहूं बने ही नहीं है, तो हाई कोर्ट के अंदर आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरा कहना क्या है कि अगर 1 जनवरी 2022 से पहले आपका 2A 2B के अंदर कुछ आईटीसी नहीं आ रहे थे और आपने क्लेम कर लिया और बाकी कंडीशन आपकी सारी फुलफिल थी, तो आप लीगल बैकिंग आपके पास है और आप उस अकॉर्डिंगली उसका रिप्लाई करें और आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हमें पता चल गया जी क्रेडिट हमें कब मिलेगा, हमें कोई भी आईटीसी मिलेगा अगर हम उसे यूज कर रहे हैं फर्दरेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। कब नहीं मिलेगा? जब हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉजेस डबल ए बी सी डी और प्रोवाइजो को हम फुलफिल नहीं करेंगे तब हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इसके साथ साथ एक मैटर क्या आया, एक मैटर आता है जब 16 डबल ए नहीं था, उसने क्रेडिट नहीं, बेसिकली बंदे ने क्रेडिट नहीं फाइल करा और सेलर की गलती से टैक्स पे नहीं हुआ, सेलर ने टैक्स ही नहीं पे करा गवर्नमेंट को। तो बेसिकली देयर इज अ मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट विच इज वेरी वेलकम जजमेंट इन द केस ऑफ DY बेथल एंटरप्राइजेस वर्सेस द स्टेट ऑफिसर्स डाटा सेल। 24 फरवरी 2021 में ये आया, where it has been held that when the seller has collected the tax from the purchasing dealer, the omission on the part of the seller to remit the tax in the question must be viewed very seriously and strict action ought to be initiated against the seller। यानी आप पहले सेलर के ऊपर एक्शन लें कर रहा है, नोटिस आपके पास आया है, बट इस जजमेंट, ये जजमेंट कहती है आप पहले सेलर के ऊपर एक्शन लें। Thus, the impugned order asking the recipient to reverse the credit suffer from the fundamental flaws, and this has been coerced for more than one reason। ये जो आईटीसी रिवर्सल की बात करी गई थी उसे कोएश कर दिया गया अंडर दिस जजमेंट, कहकर कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सेलर इन द इंक्वायरी, नॉन इनिशिएशन ऑफ रिकवरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि एक मेरे क्लाइंट ने आईटीसी क्लेम करा, सामने पता चला सेलर ने या तो उसका जीएसटी जमा नहीं कराया, और जीएसटी जमा नहीं कराया तो मेरे क्लाइंट के पास नोटिस आया कि जी इसने जीएसटी जमा नहीं कराया और अकॉर्डिंगली हम आपको आईटीसी नहीं अवेल कराएंगे। या फिर आज आपको पता होगा जो नोटिस आ रहे हैं उसके अंदर वो 2A आपसे मांगते हैं और 2A के अंदर देखते हैं जिन जिन के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए उसके लिए भी आपसे कहते हैं कि ये जेन्युइन है, प्रूफ करिए। तो उसके लिए ये बड़ी वेलकम जजमेंट है जो ये कहती है कि पहले जाके आप सप्लायर को, जीएसटी डिपार्टमेंट को कहती है पहले आप जाके सप्लायर की इंक्वायरी करें, सप्लायर से रिकवरी प्रोसीडिंग फॉलो करें, तब आप आईटीसी रिवर्सल की बात करें। बट अभी एक सर्कुलर जो मैं आगे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा उसके अंदर गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी सेलर से तो आप कुछ कह ही नहीं सकते इन केस ऑफ फेक इनवॉइसेस, बट अदर देन दैट अगर फेक इनवॉइस का मैटर नहीं है तो आप इसकी जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आज भी, क्योंकि सर्कुलर अब आपको हाई कोर्ट से पहले रिलीफ नहीं मिलेगा, बट आप इस जजमेंट को कोट कर आप, बिकॉज आप अपनी लड़ाई अभी लड़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में काम आएंगे। आप इस जजमेंट को कोट कीजिए और अगर आपको पहले ये कहना है डिपार्टमेंट को जाके सेलर से इंक्वायरी करें, सेलर से रिकवरी प्रोसीडिंग करें, फिर आईटीसी रिवर्सल की बात करें। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं कुछ सर्कुलर जो इंपॉर्टेंट आज आए हैं उनको आपको बताना चाहूंगा जो कल इशू हुए हैं, जो सुबह ही हम लोगों को पता चले कि सर्कुलर इशू हुए हैं कल। ये बेसिकली 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर क्लैरिफिकेशंस की बात की गई थी, तो उसके चलते गवर्नमेंट ने काफी सारे सर्कुलर इशू करे स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 169 टू 176, और उन सर्कुलर्स के अंदर बहुत सारे लिटिगेटेड इश्यूज को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा। एक सर्कुलर 171 जिसके अंदर बेसिकली इन केस ऑफ रॉन्ग आईटीसी द रिकवरी ऑफ जीएसटी शुड बी डन फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड नॉट फ्रॉम द सप्लायर। However, the penalty provision will apply for the violation of the law on the both the parties। इसका मतलब क्या है? इस सर्कुलर का क्रैक्स क्या है कि अभी हमने बात करी कि जाके जी पहले सेलर से रिकवरी करो, बट फेक इनवॉइस के केस में
ये सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि फेक इनवॉइस के केस में पहले आईटीसी रिवर्स कराएं। सेलर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप पेनल प्रोविजन लगाएं 122 के। फर्दर दिस हैज बीन क्लैरिफाइड दैट व्हेन द शो कॉज नोटिस, अच्छा दूसरा क्या कहा गया आईटीसी के केस में भी, दूसरा क्या कहा गया, ठीक है आपका माना गया कि रॉन्ग आईटीसी क्लेम करा और सेक्शन 74 का शो कॉज नोटिस आपको आ गया, तो वो ये कहता है कि 122 सेक्शन जो कि 100% पेनल्टी की बात करता है वो आपके ऊपर इनिशिएट नहीं होगा अगर आपका शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74 इशू हो चुका है। तो नो फर्दर प्रोसीडिंग विल बी डन इंक्लूडिंग सेक्शन 122। वो कहता है कि एक बार 74 इशू हो गया तो दोबारा आप उस चीज को नहीं आप शो कॉज देंगे, आप उसको नहीं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, मैंने दो जजमेंट आपको बताई। एक जजमेंट मैंने बताई डीवाई बैथल की, मद्रास हाई कोर्ट की, जिसने कहा कि सेलर से रिकवरी करें, बट गवर्नमेंट ने आज सर्कुलर इशू करा जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल दिए। अगर ए ने बी को माल बेचा और ए ने फेक इनवॉइसिंग करी, बी ने कुछ ना, बी के बाद गुड्स आए ना सर्विसेज आई और उसने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो सर्कुलर कहता है कि नहीं आप ए से कोई रिकवरी मत कीजिए, आप बी का आईटीसी रिवर्स कराइए और बी के ऊपर सेक्शन 74 के अंदर शोकॉज दीजिए और अकॉर्डिंगली से कंक्लूड कीजिए। और जो ए है, ए के ऊपर आप सेक्शन 122 के अगेंस्ट, वायलेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए। फिर दूसरा केस आया, ए से बी को सप्लाई हुआ, बी से सी को सप्लाई हुआ और दोनों ही फेक था, सारा आईटीसी फेक था। तो कहा गया बी को तो कुछ नहीं करना, ना आईटीसी रिवर्स करना ना आउटवर्ड देना, बी के ऊपर सेक्शन 122 की प्रोसीडिंग चलेगी अगर सेक्शन 74 इशू नहीं हुआ है तो। और सी के ऊपर रिकवरी चलेगी, सी के ऊपर उसे आईटीसी रिवर्स करना है, ना बी को कुछ करना है ना ए को कुछ करना है अदर देन पेनल्टी। तो आप इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें जो इन मैटर्स को डील कर रहे हैं। दो सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन अ टैक्स पेयर बट स्टिल it specify the intention of the lawmakers, sorry law implementers, basically the department. now हमने कहा कि जी 16(2) की कंडीशन हमने फुलफिल कर ली, हमने 180 दिन के अंदर पैसे भी दे रखे हैं, हमने 16(4) से पहले भी टाइम लिमिट से पहले रिटर्न फाइल कर दी। अब आपको पता होगा सेक्शन 17 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, मैंने 17 पूरा नहीं लिया क्योंकि हमें पता है जो हम एग्जाम सप्लाई के लिए या रिलेटेड के लिए अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलना इन एनी केस एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन इफ द पर्सन इज डूइंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स देन ही कैन क्लेम द आईटीसी। तो उसे ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर अगर आप कोई भी इनपुट क्रेडिट जो रिलेटेड है उससे, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपके एग्जेम्प्टेड भी है और टैक्सेबल भी है तो जो टैक्सेबल से डायरेक्टली रिलेटेड है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, जो एग्जेम्प्टेड से डायरेक्टली रिलेटेड है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, और अगर कॉमन क्रेडिट है तो वो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। आप रूल 42 43 में जाएंगे। हम क्योंकि टाइम की ये समय सीमा दी हुई है मुझे 1.5 घंटा, अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे पास बचा है तो काफी कुछ कवर करने के लिए। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कहता है कि जी आपने ठीक है बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल कर दी, आप सारी चीजें कर रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं कर रहे, बट स्टिल ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। वो क्रेडिट क्या है? वो क्रेडिट है सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल अगर किसी ने लिया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सन हैविंग अप्रोक्स सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, वो कहता है हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। यानी कि मिनी बस या उससे ऊपर का मोटर व्हीकल अगर आपने लिया है तो आईटीसी की बात करें, अगर उससे 13 कैपेसिटी से कम सिटिंग है तो आप आईटीसी की बात ही ना करें मोटर व्हीकल के ऊपर।
वो ब्लॉक्ड है, हम उसका आईटीसी नहीं देंगे। अगर आप मोटर व्हीकल की ही सप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली आप ट्रेडर हैं, कार के ट्रेडर हैं, तो आपको आईटीसी मिलेगा। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दे रहे हैं और आपने व्हीकल खरीदा है तो आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आप इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, ट्रेनिंग स्कूल से है और उसने गाड़ियां खरीदी हैं 13 सीटर से कम है, यानी उसने मारुति ली है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं अदर देन द ट्रांसपोर्टेशन, तो उनका आपको क्रेडिट मिलेगा। बट क्या एक कंपनी ने के डायरेक्टर ने गाड़ी ली और वो 7 सीटर है, अर्टिगा की मैं बात करता हूं, अगर अर्टिगा की अगर लीगल सीटिंग की बात करें तो 7 सीटर है, तो क्या उसे आईटीसी मिलेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर वो लोग यूज नहीं कर रहे, उनका कोई कार डीलर नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, फिर वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए भी यही कहा गया। ठीक है, हम लोग बात करें तो जो हमारे बिग रिच पर्सन्स हैं उनके पास उनके पर्सनल एयरक्राफ्ट भी हैं, वेसल्स भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम उसका भी क्रेडिट नहीं देंगे। हाँ, क्रेडिट हम आपको अलाउ करेंगे, बस कब? जब आप उसका सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर आप ट्रेडर हैं उनके, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देते हैं, आप ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल की वो करते हैं, आप ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट की वो देते हैं सर्विसेज, यानी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, या फिर आप उन्हें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर यूज करते हैं, तभी हम आपको उसका आईटीसी देंगे, वरना वेसल और एयरक्राफ्ट का भी हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बीच में जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, ये अमेंड किया गया है सेक्शन, और भी इंसर्ट किया गया। हम जो पढ़ रहे हैं, फिर हमने डबल ए पढ़ा वेसल एयरक्राफ्ट के लिए, अब हम ए भी पढ़ रहे हैं। पीछे कुछ इंटरप्रिटेशनल इशू थे तो गवर्नमेंट ने इसे अमेंड कर दिया। अब वो ये कहता है जो मोटर व्हीकल ऊपर अलाउड नहीं है जिसका क्रेडिट, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड सर्विसेज, उससे रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस का भी क्रेडिट आपको हम नहीं देंगे। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन क्या है, वहां पे ट्रेडर अलाउड था, यहाँ कहते हैं मैन्युफैक्चरर है ना अगर कोई मोटर व्हीकल का, बिकॉज इसमें कह दिया गया कि मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं देंगे। अब मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरर है, मारुति है फॉर एग्जांपल, उसने अपना स्टॉक इंश्योरेंस कराया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये थोड़ी लॉ की है कि भाई उसका भी क्रेडिट नहीं देंगे, तो यहाँ पे 16 डबल ए भी डाला गया जिसमें एक्सेप्शन डाली गई कि नहीं जी उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। बट उसके अलावा जो क्रेडिट हमने बात करी, जो मोटर व्हीकल हमने ऊपर बात करा, उनका किसी का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। मूविंग फॉरवर्ड, फिर क्लॉज बी है 17 सबसेक्शन 5 का, वो कहता है आपको भी पता है फूड एंड बेवरेजेस पे हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, आउटडोर कैटरिंग पे क्रेडिट नहीं देंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट पे नहीं देंगे, हेल्थ सर्विसेज पे नहीं देंगे, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं देंगे, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन। यानी कि ए और ए जो हमने पढ़ा, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं अलाउड है, हम कहते हैं नहीं जी ठीक है, हम खरीदते नहीं, हम क्रेडिट को लीज पे ले लेते हैं, मोटर व्हीकल को लीज पे ले लेते हैं, दे दो जी, रेंट पे ले लेते हैं, दे दो जी क्रेडिट, हायर पे ले लेते हैं, दे दो जी क्रेडिट। नहीं, ये क्लॉज कहता नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा कब? जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मोटर व्हीकल के ट्रेडर हो, आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करो, तब आपको क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, इधर ना जो वर्ड लीजिंग लिखा हुआ है इस क्लॉज के अंदर, उसको लेकर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशनल इशू आए, तो गवर्नमेंट ने आज सर्कुलर 172 जो मैंने बताया ना कुछ क्लैरिफिकेशन दी, 172/04/2002 सॉरी 2022, जिसके अंदर कहा गया कि जो ये लीजिंग है ये सब मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट तीनों के ऊपर है, इसके अलावा और कोई लीजिंग एक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे। यानी लीजिंग ओनली रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, और कुछ बेसिकली इंटरप्रिटेशनल इशू था, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। अच्छा, इसकी एक्सेप्शन हमने कहा जी फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं देंगे, बट आज जो होटल रन कर रहा है और जो मिक्स सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं, उसका प्रोवाइजो एडेड है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट मिलेगा। एक
होटल वाले ने पैसेंजर व्हीकल हायर करा, मोटर व्हीकल हायर करा टू प्रोवाइड द एकोमोडेशन सर्विसेज, वो पार्ट एंड पार्सल है, कंपोजिट सप्लाई है, तो क्या मुझे व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा जो मैंने उस पे हायर चार्जेस पे जीएसटी पे करा? एज पर द प्रोवाइजो, यस, आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। मूविंग फॉरवर्ड, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, जो एलटीए वगैरह के लिए आप खर्चा करोगे, एम्प्लॉयज के लिए जो आप खर्चा करोगे फॉर द ट्रेवल बेनिफिट्स, आप कहोगे जी एम्प्लॉय तो मेरा बिजनेस के लिए है, तो जो मैं खर्चा उस पर कर रहा हूँ उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पे भी एक क्लैरिफिकेशन इशू करी गई, इसमें एक प्रोवाइजो एडेड है, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल व्हेन इट इज ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये क्या कहता है कि आपको हम ट्रैवल बेनिफिट का भी क्रेडिट अलाउ कर देंगे, हम आपको मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर का भी कर देंगे, हम आपको फूड्स वगैरह का भी क्रेडिट अलाउ कर देंगे अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, बट कब? जब वो मैंडेटरी अंडर द लॉ। तो कुछ इंटरप्रिटेशनल इशू थे, बिकॉज प्रोवाइजो थर्ड क्लॉज के बाद था, तो उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि ये प्रोवाइजो पूरे के पूरे सब क्लॉज बी के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये बाया क्लैरिफिकेशन सर्कुलर डेटेड यस्टरडे एट नंबर 172 के द्वारा क्लैरिफाई करा। अब आते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अ प्लांट एंड मशीनरी except where it is an input services for the suppliers for the supply of work contract services। एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है और उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विसेज ली तो उसे क्रेडिट अलाउड है, बट एक बिल्डर, एक मैं बंदा हूं, मैं जो फैक्ट्री बनानी है, मैंने उठा के पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उस फैक्ट्री को मैंने कैपिटलाइज भी करा, वो आगे पढ़ेंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जीएसटी लॉ के अंदर डिफाइंड है, खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कहलाती है। पहले हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस टैक्स के जमाने में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है, वैट के जमाने में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है, बट उन सबको आप अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है, तो उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहे। डी क्लॉज कहता है गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदर है प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज, और वो कहता है कि बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, मैंने जो फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, मैं कहता हूं मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, मैं खुद की बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज होगी, बट स्टिल गवर्नमेंट कहती है आपने कैपिटलाइज करी है, बिल्डिंग कैपिटलाइज करी है, उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। क्लॉज सी और डी के अंदर एक्सप्लेनेशन एडेड है, जो कहता है कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं व्यूअर से एक आंसर चाहूंगा, मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, मेरा क्लाइंट है, उसने कुछ पेंट कराया वॉल्स पे और उसका खर्चा उसने कैपिटलाइज नहीं करा, उसके ऊपर जीएसटी लगा, इट इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के अंदर कवर्ड है, रिपेयर के अंदर आता है, तो क्या मुझे आईटीसी उसका मिलेगा? आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स, यस कैन क्लेम, या अरविंद अश्विन जी, यस अश्विन सर, मैं वेट नहीं करूंगा कि टाइम थोड़ा कम है, बिल्कुल क्रेडिट उसका हमें मिलेगा, बिकॉज इसमें कहा गया कि अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ है, जितना कैपिटलाइज करा है उसका क्रेडिट सिर्फ डिसअलाउ की बात कर रहे हैं। क्लॉज पे आ जाते हैं, अगर कंपोजिशन डीलर से आप कुछ गुड्स ले रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलता, सेक्शन 16 भी कहता है, बट ये डाल दिया गया। नॉन रेजिडेंट से आप कुछ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन इंपोर्ट के अलावा अगर आप कुछ नॉन रेजिडेंट से ले रहे हैं गुड्स तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, वो तो हमें पता है बिजनेस के लिए जो यूज नहीं हो रही उसका क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं। इवन रूल 42 के अंदर एक 5% की बात करते हैं, जैसे डायरेक्टर की गाड़ी है तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ कुछ परसेंटेज हो सकता है पर्सनल यूज के लिए भी हो जाती है, तो गाड़ी का तो क्रेडिट डिसअलाउड है, तो बात ही नहीं आती पर्सनल पर्पस के डिसअलाउंस की। बट
उसके अलावा टेलीफोन है, करने के लिए भी यूज होता है, वो फॉर बिजनेस के लिए भी यूज होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि 5% कॉमन क्रेडिट का डिसअलाउ करना चाहिए एज पर रूल 42। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। आपको पता होगा जो बेसिकली मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है वो बहुत फ्री सैंपल्स देते हैं डॉक्टर्स को, उस पे भी जो आपने आईटीसी लिया उसका आपको रिवर्सल करना है। आपने कुछ गुड्स बाय करे और फ्री गिफ्ट दे दिए, उसका भी आपको आईटीसी रिवर्स करना है। इवन जब केरला के अंदर फ्लड आई, बहुत सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए, तो उस पे भी जीएसटी क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ा। आप समझ रहे हैं, एच क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के यहाँ भी कोई भी गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, उसे एक मार तो पड़ी पड़ी, उसके गुड्स चले गए, बट दूसरी मार उसे ये भी पड़ी कि जीएसटी क्रेडिट जो उसने यूटिलाइज करा वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपए का क्रेडिट वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका था बंदा, और उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, और सारा का सारा स्टॉक जल गया, खत्म हो गया, राख हो गया, बिक भी नहीं पाया वो। उसको और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जीरो बैलेंस है, वो यूटिलाइज कर चुका था पुराने गुड्स की सेल के अगेंस्ट, तो उसे 100 रुपए का जो क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ेगा एज पर द एच क्लॉज। अच्छा, आई क्लॉज क्या कहता है? अगर आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग के चलते आपको पता चला कि आपको कुछ आरसीएम नहीं पे करा, आपने कुछ आईटीसी आपने क्लेम करना था रह गया, तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। 129 बेसिकली ई वे बिल का है, और 130 सेक्शन जो वो कहते हैं कि भाई आपके बेसिकली गुड्स सीज कर लिए गए हैं, तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन करा गया। प्लांट एंड मशीनरी को कहा गया कि भाई प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, equipment, machinery fixed to the earth by the foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation and structural support but exclude। अब मैंने कुछ फाउंडेशन बनाई और कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया मशीन को रखने के लिए, दो मैंने पढ़ा कि भाई वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मोबाइल प्रॉपर्टी में तो नहीं आ जाएगा, बट यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया नहीं, उसे हम मानते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज हुआ। बट एक्सक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, लैंड बिल्डिंग और कोई सिविल स्ट्रक्चर है उसे एक्सक्लूड करना है। टेलीकम्युनिकेशन के जो टावर लगते हैं उस पे हम क्रेडिट नहीं देंगे, वो कहते हैं हम मान के चल रहे हैं वो इमूवेबल है, उसे आप ये ना कहें प्लांट एंड मशीनरी है। पाइपलाइन लेट डाउन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जो फैक्ट्री को क्रेडिट नहीं देंगे वो भी हम मान के चल रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता। फिर हम बात करते हैं, हमने बात करा कि भाई हमें क्रेडिट कब कब मिलेगा। हमें क्रेडिट सेक्शन 16 को हम कंप्लाई करेंगे, हमें क्रेडिट मिलेगा। 17(5) के अंदर कुछ ब्लॉक क्रेडिट है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम रिटर्न फाइल करेंगे, अगर हमारा आईटीसी ज्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस चला जाएगा, ये हम सबको पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस है, बेसिकली दो द पीपल आर डूइंग प्रैक्टिकली दैट ओनली, बट एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी, अगर सपोज किसी की आज डिमांड निकल आई जीएसटी की और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो वो उस हेड को अकॉर्डिंग टू द लॉ सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग जो बेसिकली यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म है उसको ध्यान में रखते हुए वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उसको पे कर सकता है। ये एक क्लैरिफिकेशन डाली गई। जो सेल्फ असेसमेंट है टैक्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि एक इशू क्या आ रहा था, आज 17-18 की कोई डिमांड निकल के आई, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कौन सा आईटीसी बचा हुआ है ये मैं नहीं पता लगा सकता। और लॉ की इंटरप्रिटेशन, लॉ बेसिकली ऑफिसर कहता है 17-18 के अंदर तो जी आपका आईटीसी 0 हो गया था, उस टाइम पे आईटीसी खत्म ही हो गया था, ये तो आईटीसी आपका बाद का है तो उसे कैश में पे करें, तो ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। आप अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आज भी पैसा पड़ा हुआ है और आपकी कुछ पुरानी डिमांड्स निकाल दी गई हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये आप बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर प्रैक्टिकली भी
हमें पता है पेनल्टी इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, पेनल्टी इंटरेस्ट के लिए हमें कैश में ही पे करना पड़ेगा। नाउ हमें क्लियर हो गया कि आईटीसी कैसे कैसे हमें मिलेगा। अब मैं आईटीसी रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो ले लेता हूं एक बार, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली 3B कैसे फिल करना है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू करी है रिलेटेड टू द आईटीसी, मैं डिस्कस कर रहा हूं खाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सबको जानना, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं चैट बॉक्स में क्वेरी देख लेता हूं। अश्विन सर को अनम्यूट, अश्विन सर आपकी एक क्वेरी थी, प्लीज अनम्यूट करके उसे बोलिए सर, मैं आंसर करना चाहूंगा अगर आप हैं सुन रहे हैं तो। हाँ जी सर, आई एम ऑडिबल। या प्लीज। मेरा क्वेरी ये था साहब कि हमारा एक एक्सपेंशन हो रहा है फैक्ट्री में, उसमें प्लांट मशीनरी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। उसमें करीब 1 साल तक समय टाइम लगने वाला है पूरा कंप्लीशन होने के टाइम पे। जी जी जी। तो क्या हम लोग आईटी से अभी जैसे जैसे हमारे आ रहा है सब प्लांट मशीनरी का पार्ट्स उसके पे ले सकते हैं कि ऑन कंप्लीशन नहीं लेना पड़ेगा उसको? क्या कह रहे हैं सर, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे सर प्लीज। प्लांट मशीनरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं हम फैक्ट्री में, जी तो उसमें करीब 1 साल का टाइम लगने वाला है अभी। जी कंप्लीशन पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने में 1 ईयर का टाइम लगने वाला है। जी जी। तो उसके लिए जो भी पार्ट्स अभी हम खरीद रहे हैं धीरे धीरे, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो उसका जो आईटीसी इक्विपमेंट हो रहा है वो अभी हम क्लेम कर सकते हैं कि जब कंप्लीट हो जाएगा प्लांट का वर्क तब करेंगे हम? नहीं सर, आप आईटीसी आज भी क्लेम कर सकते हैं। ओके। देखिए आपके पास, देखिए पुट टू यूज कहाँ का है, हम इनकम टैक्स से और कंपनीज एक्ट से लिंक कर रहे हैं सर। रेडी टू यूज, पुट टू यूज जीएसटी लॉ के अंदर नहीं है सर। जब हम सारा सेक्शन पूरा एक्ट देख लेंगे वहां कहीं भी नहीं कहा कि पुट टू यूज। फर्दरेंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तक की बात कर रहे हैं सर। मैं कहता हूं कल मैं बिजनेस करूंगा, हो सकता है मैं कल इस मशीन को यूज करूंगा, तो भी मैं आईटीसी ले सकता हूं सर। आप मेरी बात समझे सर। आपके पास जो प्लांट मशीनरी है वो आ गई तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। डब्ल्यूआईपी कंडीशन में है तो भी आप आईटीसी क्लेम करेंगे सर। अगर आज आप नहीं क्लेम करेंगे सर तो 16(4) की कंडीशन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, क्या करेंगे तब? ठीक है, ठीक है। अश्विन सर समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी जी, राइट। और लॉ के अंदर कहीं भी, हाँ लॉ के अंदर कहीं भी पुट टू यूज और रेडी टू यूज की बात नहीं करी गई है सर। और दूसरा सवाल ये था कि मेरा जो, सपोज मैंने किसी से परचेज करता हूँ एक्स फैक्ट्री पे जी, वो मंथ एंड में या ईयर एंड में परचेज करता हूँ, उसका डिलीवरी मेरे को नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में मिलता है, तो उस केस में मैं आईटीसी जो मंथ में मैंने एक्स स्वरूप डिलीवरी लिया उसमें मैं क्लेम कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ में ही करना रहेगा? सर मतलब आपका सिंपल ये कहना है कि मैंने फैक्ट्री से 30 जून पे माल उठा लिया, मेरी कस्टडी में आ गया, एक तरीके से यही कह रहे हैं आप सर? जी 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 जी। या तो सर मेरा मानना यह है कि गुड्स रिसीव्ड नहीं माने जाएंगे सर, क्योंकि इन ट्रांजिट है सर वो। नहीं ट्रांजिट है, लेकिन मेरा एक्स फैक्ट्री उसके साथ एग्रीमेंट है कि मैं तेरे वहां से ही माल उठा लूंगा, और मेरे को उस टाइम उसने ट्रांसफर कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया गुड्स मेरे को उसने। गुड्स तो मेरे पोजीशन में तो आ गया है ट्रांजिट वो। है, अगर हाँ पोजीशन में आपके आ गया, अगर सपोज रास्ते में वो खत्म हो जाता है गुड्स एक्सेप्शनल, गुड्स रिसीव्ड डिफाइन नहीं है लॉ के अंदर, ले सकते हैं सर क्रेडिट, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिस्क एंड रिवार्ड मेरे पास ट्रांसफर हो चुका है। यस। बिकॉज ऐसे बिल टू शिप टू मॉडल के दिन माल चल दिया और मेरे पास इनवॉइस आ गया तो उस दिन माना जाता है कि मुझे गुड्स मिल गया। बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर भी जीएसटी क्रेडिट अलाउड है, तो आप ले सकते हैं सर क्रेडिट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जहूर जी की क्वेरी है सर, कैन वी क्लेम आईटीसी ऑफ रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूटर? जहूर जी अगर ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, आपका रेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर है तो आपको क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा सर। अब इन जो क्वेरीज है सर आप खुद भी आंसर कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो आप खुद बताएं सर, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट अलाउड है सर, मिलेगा क्रेडिट सर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, हम क्वेरी ले लेते हैं जो सर्कुलर है उसे ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम मान के चलते हैं सारा जो आईटीसी हमारा एलिजिबल है। अब हमने 16AA पढ़ लिया जिसके अंदर कहता है आईटीसी जो 2B के अंदर आ रहा है आपको क्लेम करना है। अब 2B के अंदर आईटीसी आ रहा है, कुछ आईटीसी 17(5) के अंदर ब्लॉक है, कुछ आईटीसी हमने पढ़ा कि 42, 43 एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर रखा है तो वो रिवर्स करना है। हमने पढ़ा 180 दिन के अंदर अगर मैंने आईटीसी की पेमेंट नहीं करी तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना है। तो उसको किस तरीके से हम उसको 3B के अंदर फाइल करें, ये एक क्वेश्चन बेसिकली सब डिफरेंटली कर रहे थे और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू कर दी कल। 170 सर्कुलर है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं और पढ़ना चाहिए आपको। जो गवर्नमेंट ने क्या कहा, बड़ा सिंपल कहा गवर्नमेंट ने। सबसे पहले तो जी जो 2B के अंदर आईटीसी आ रहा है वो ऑटो पॉपुलेट आपका 4A के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 4A के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया आईटीसी। अब हम बात करें 4A के अंदर जो आईटीसी आ गया, 2B के अंदर आईटीसी आ गया, अब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। जैसे मैंने कहा गुड्स नहीं आए बट बिल क्योंकि रेज हो गया था तो उसने GSTR 1 में उस मंथ के फाइल कर दिया और अकॉर्डिंगली मेरे पास गुड्स अगले महीने आए, बट 2B के अंदर तो आईटीसी आ रहा है, बट एज पर द लॉ तो मुझे बनता नहीं कि मैं अभी लूं उस आईटीसी को, तो उसे मैं कहाँ दिखाऊं। तो इस सर्कुलर के माध्यम से कहा गया उस आईटीसी को जो 2B के अंदर आ रहा है वो पूरा का पूरा 4A के अंदर ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, आने दीजिए। नाउ आप जो आईटीसी आपका जो गुड्स नहीं आया उस आईटीसी को आप नीचे रिवर्सल में दिखाइए। और आप रिवर्सल में कहा डालें, तो वो कहा गया आप रिवर्सल में जब आप 3B देखेंगे, मैं अभी 3B शेयर कर देता हूं आपको यहाँ पर 3B का फॉर्मेट। तो 4A के 5 पार्ट है। 4A में सबसे ऊपर आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर आता है अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज RCM 1, फिर आता है 4th इनपुट क्रेडिट्स ऑफ IHD और अदर ITC। तो इन 5 कॉलम के अंदर आपका जो 2A वाला है, जो 2B वाला है वो एनी अदर ITC के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अब मुझे ITC नहीं लेना, वो ITC मेरा बेसिकली मेरा गुड्स नेक्स्ट मंथ में मुझे रिसीव हुआ है, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई और कहा गया कि आप उसको जो शो करेंगे सेक्शन 16 के चलते बेसिकली। अब अगर हम बात रिवर्सल की करेंगे, तो उसके लिए 4A तो हो गया आईटीसी लेने का, 4B हो गया आईटीसी रिवर्सल का, और 4C हो गया नेट आईटीसी, और 4D जब आप 3B देखेंगे तो वो हो गया सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का। 4A के अंदर जो 2B के अंदर आ रहा है उसे छेड़े नहीं, पूरा का पूरा आने दे, गवर्नमेंट का ये कहना है सर्कुलर का। वो कहते हैं अब आपको 17(5) का रिवर्सल करना है। अब आपको जो रिवर्सल परमानेंट है, जो रिवर्सल आपको ऐसा करना है जिसका क्रेडिट आपको आगे नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट कह रही है उसका रिवर्सल आप 4B1 के अंदर करें, जहां लिखा हुआ है एज पर रूल 42, 43। और जो क्रेडिट आपको मिलेगा, जो क्रेडिट आपको मिलना है, उसका रिवर्सल आप जो करें वो आप करें 4B के 2 के अंदर। तो क्या कहा उन्होंने, रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर नॉट रिकम्लेबल। जो क्लेम नहीं होएगा उसको एज पर रूल 38 कुछ एग्जांपल दिए। जो आप 17(4) की बात कर रहे थे सर, एक क्वेरी में आया हुआ है कि बैंकिंग को क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो सीधे सीधे भी ले सकती है वरना 50% उसका रिवर्सल करके भी ले सकती है। रूल 42, रूल 43 और रूल 17(5) के जो रिवर्सल है गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा कि उसे आप 4B1 के अंदर क्लेम करें। और जो रिवर्सल आपके ऐसे हैं, जैसे हमने पढ़ा 180 दिन के अंदर मैंने पेमेंट नहीं करी मेरे क्लाइंट ने, उसका क्रेडिट मैं आज रिवर्स कर रहा हूं, बट उसका क्रेडिट मुझे अलाउ होगा इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट का कहना है उस क्रेडिट को आप जब रिवर्स कर रहे हैं तो उस क्रेडिट को आप 4B के 2 में रिवर्स करें।
बात समझ पा रहे हैं मेरी? अभी मैं 3B शेयर करूंगा तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। मैं आपको भी 2 कॉलम है, तो गवर्नमेंट कह रही है 4B2 के अंदर रिवर्स करें। अब आपको पता होगा 17/5 का जो रिवर्सल था, गवर्नमेंट ने नीचे स्पेसिफिक कॉलम दे रखा था 4D1। जो हमने ब्लॉक क्रेडिट पढ़े, मैंने गाड़ी खरीदी मेरे क्लाइंट ने, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, तो अब 2B के अंदर तो आ रहा है क्योंकि जीएसटी नंबर दिया गया, बट उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम नीचे 17/5 में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कर दिया करते थे और ऊपर 4A के अंदर से हटा दिया करते थे जो 2B के अंदर आ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं करो, आप जो 17/5 का रिवर्सल है वो आप 4B1 जो 42-43 के साथ है उसके अंदर डालिए। बिकॉज मैंने पीछे जब आप पीछे भी जो वेबिनार्स मेरी सुनी होगी, तो मैंने कहा था एनुअल रिटर्न के अंदर ये कॉलम ठीक से नहीं उठाता। तो उसके चलते प्रॉब्लम क्या है कि जो आईटीसी है बिकॉज आपको रिक्लेम नहीं करना, तो गवर्नमेंट का सिंपल कहना है जो आपको आईटीसी रिक्लेम नहीं करना वो आईटीसी आप सिंपल और सिंपल रिवर्स कर दीजिए, आप 4B2 के अंदर डालिए। मूविंग फॉरवर्ड 16 बी की कंडीशन फुलफिल नहीं करी, परमानेंट रिवर्सल है, तो भी आप 4B2 के अंदर डालें। अब उन्होंने कहा 4C कैसे कैलकुलेट होगा, 4A प्लस 4 माइनस 4B1 प्लस 4B2। मतलब बेसिकली क्या है, जो आपको अवेलेबल है प्लस जो रिवर्सल्स है उन्हें माइनस करके 4C आ जाएगा और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है जब आप 3B फाइल करते हैं। एक 4D है, 4D के लिए क्लैरिफाई कर दिया गया, एज द डिटेल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5) are being provided in table 4B to be provided in table 4D1। इसका कहना यह है कि 4D1 जो मैं बात कर रहा था कि मियर खाली रिफ्लेक्शन था नीचे, वो आपको 17(5) का अब नहीं करना, आपको आईटीसी रिवर्सल के अंदर डाल के उसे कम कर देना है। अब 16(4) का कुछ आईटीसी जो कि बेसिकली आपने देखा होगा 2B के अंदर कुछ आता है आईटीसी इनएलिजिबल। वो इनएलिजिबल क्या है, आईटीसी प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है, और दूसरा 16(4 यानी रिटर्न किसी ने 20-21 की आज फाइल करी है, 2B के अंदर तो आएगा बट वो इनएलिजिबल में आएगा। तो वो कह रहे हैं कि 4D के अंदर आप डाल सकते हैं, 4D2 के अंदर आप डाल सकते हैं, वो भी मतलब आप डालना चाहे तो डालें वरना कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये कहना है, इस क्लैरिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, इसका एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है, वो इलस्ट्रेशन मैं आपको शेयर कर देता हूं और मैं आपको ये जो मैंने बात कही वो एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल को आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो गवर्नमेंट को प्रूव करना आपको पता है कितना हार्ड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं इस स्लाइड शो को एंड कर रहा हूं अभी और मैं आपसे न्यू शेयर कर रहा हूं वो सर्कुलर। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सामने, स्क्रीन दिख रही है मेरी सुमित जी? कोई भी व्यूअर बता दे स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? ओके, थैंक यू प्रीतम जी। बेसिकली इस स्क्रीन के अंदर एक एग्जांपल दिया गया, ये एग्जांपल है जी, आप पढ़ लीजिए एक बार। A registered person ABC is a manufacturer of supply of good, he supply both taxable as well as exempt। उन्होंने कहा कि आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 4A1 के अंदर, आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आप आरसीएम के अंदर आरसीएम पे कर रहे हैं, इनवर्ट आरसीएम वाला आईटीसी हो गया, इनवर्ट सप्लाई आईएसडी वाला आईटीसी हो गया, ये जो मैं 4A की बात कर रहा था 4A पूरा कॉलम हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं ऑफ द इनवर्ट सप्लाई मेंशन इन 5 एबीसी हैज रिसीव्ड ऑन व्हिच आईटीसी इज बार्ड एज पर 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट है सीजीएसटी एक्ट के अंदर 50,000 का, रूल 42-43 के अंदर ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। फिर कह रहा है कि अप्रैल 22 के अंदर कुछ इनवॉइस आए ऑटो पॉपुलेट हो गए,
बट सप्लाई नहीं आई 10,000 रुपए की, वो कह रहे 500 रुपए ये आपको रिवर्स करना है, रूल 37 के अकॉर्डिंग 180 दिन में पेमेंट नहीं करी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है सर। ओ मैं पूछ रहा था, प्लीज 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 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। सॉरी अभी देख पा रहे हैं सर? यस सर। हाँ प्लीज प्लीज आप 2 मिनट लीजिए, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे चलें। ये कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स के एग्जांपल हैं, बस हमें सिर्फ देखना है कि 3B में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि कहाँ दिखाना है। ये सब तो 4A के अंदर आ ही गया, गवर्नमेंट ने ऊपर चार्ट ही बना के दिया है। फिर बी की बात करते हैं। बी की बात में कहा गया कि जो 42 43 के रिवर्सल है वो आप इसके अंदर दिखाएंगे 4B के 1 के अंदर। 17/5 की रिवर्सल भी आप 4B के 1 के अंदर दिखाएंगे। अब जिसकी आपको सप्लाई नहीं मिली बट आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी और आपको क्रेडिट रिक्लेम करना है तो वो आप अदर्स में दिखाएंगे। आपका रिवर्सल है 180 दिन का, जिसका क्रेडिट आपको रिक्लेम करना है वो आप अदर्स के अंदर दिखाएंगे। 17/5 का पहले हम डी क्लॉज के अंदर दिखाया करते थे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक 17/5। गवर्नमेंट कह रही है यहाँ नहीं दिखाना, आपको ऊपर ही रिवर्स कर देना है, बिकॉज एनुअल रिटर्न के अंदर यहां से उठाता ही नहीं था। वो बड़ी दिक्कत आ रही थी टेबल 8 को रिकंसाइल करने में। अदर्स के अंदर क्या कहा गया, जो आपके इनएलिजिबल क्रेडिट हैं, जो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 2B के अंदर, तो वो आप दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये गवर्नमेंट ने विद एनेक्सर आपके लिए बनाया और अकॉर्डिंगली ये आप 3B जब फाइल करें और ये आपके फैक्टर्स हैं जिनमें आपको क्रेडिट रिवर्स करने हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग करें, ज्यादा बेटर रहेगा। डिपार्टमेंट को सर्कुलर की रेफरेंस देके आप समझा सकते हैं। That is all with my slide. Now I want the query, if any. Please share with me. आप माइक ऑन करके क्वेरी पूछ सकते हैं। सत्रह चार का जो बेसिकली 17/4 की जो रिवर्सल है वो 42 43 के अंदर ही शो होगी, क्योंकि परमानेंट रिवर्सल है। गवर्नमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन दी है 4B1 और 4B1 के अंदर आप वो दिखाएंगे जो आपको रिक्लेम नहीं करना। 4B2 के अंदर आप वो दिखाएंगे जो आपको रिक्लेम करना है। तो रिक्लेम क्या होगा, मेरा 2B के अंदर कुछ सप्लाई का क्रेडिट आ रहा है जो मुझे आगे मिल रही है, तो उसका वो रिक्लेम में डालूंगा। उसका वो रिक्लेम में कहाँ डालूंगा, 4B2 के अंदर रिवर्सल डालूंगा। मेरा 180 दिन के अंदर मैंने जो क्रेडिट था वो मुझे रिवर्स करना है, तो वो उसका मैं किस कॉलम के अंदर फाइल करूंगा, 4B2 के अंदर फाइल करूंगा। बाकी जो परमानेंट रिवर्सल है, जो आईटीसी एक बार रिवर्स होने के बाद आपको दोबारा नहीं मिलना, उसको आप 4B1 के अंदर रिवर्स करेंगे। बेसिकली मुझे चैट बॉक्स में नहीं पता कैसे शेयर होगी, बट आयुष जी आपके पास ये 100% ऑर्गेनाइजर के द्वारा पीपीटी एंड पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। Anyone, any more queries, anything you cannot learn about the GST ITC? मैंने कोशिश करी कि पूरा अच्छे से समझा दूं आपको। Our last week discussion about reversal of ITC report under 42 confirmed by yes sir अश्विन जी, बिल्कुल आपके लिए आया है सर ये सर्कुलर। सर अच्छे सर्कुलर्स आए हैं, मैं कहूंगा सब लोग एक बार उन्हें पढ़ें। बहुत सारी चीजें क्लियर करी गई हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी के रिफंड को लेकर आईटीसी को लेकर भी सर्कुलर आया है। बहुत सारी चीजें अभी परसों भी अमेंडमेंट आई है, जो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करी है। इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अलाउ करा गया है इन्वर्टेड ड्यूटी में। तो आप सब हमारी वेबिनार्स देखते रहें, टीम कासा द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो आई थिंक हमारी कोशिश है कि आपको सबको अपडेट किया जाए टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज।
So Sir, I am ending this. Yeah, Ayush ji, please. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रेस्टोरेंट बाइक परचेज करता है डिलीवरी वगैरह के लिए, तो उसमें तो आईटीसी कोई उसको कुछ कहना चाह रहा है, प्लीज? यस सर जी प्लीज आयुष जी बोलिए प्लीज। सर, अगर कोई रेस्टोरेंट बाइक परचेज करता है डिलीवरी वगैरह के लिए, तो उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं सर? आयुष जी, रेस्टोरेंट का जो रेट डिसाइडेड है ना, वो डिसाइडेड है वो विदाउट सर आईटीसी। हाँ, कंपोजिशन में, राइट सर। सर वो फिर आपको 17(5) की मतलब बेसिकली वो आपकी रिवर्सल है, परमानेंट रिवर्सल है। सर जैसे कोई जो बड़े होटल है जेपी ग्रुप वगैरह, वो 18% चार्ज करते हैं, तो उस केस में तो उन्हें एलिजिबल? बिल्कुल मिलेगा। हाँ उन्हें बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमने नीचे आपने जब हमने 7 सब सेक्शन 5 उसका सब क्लॉज ए पढ़ा, तो हमने जी नीचे एक प्रोवाइजो भी पढ़ा जी जिसके सर। अंदर कहा गया अगर आप ये सर्विसेज कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, सॉरी 17A के अंदर नहीं है ऐसा, बट बिकॉज 17A के अंदर ऐसा नहीं है। एक मिनट रुकिए, क्योंकि मुझे एक मिनट चेक कर लेते हैं सर। सभी में है आई थिंक। 17A के अंदर नहीं है, तो आपको बेसिकली अगर आप प्रूव करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं तो ही होगा सर, क्रेडिट नहीं मिलेगा वरना आपको। अगर आप गुड्स आपको नहीं क्रेडिट मिलेगा सर उसका, सॉरी। अच्छा, जेपी वगैरह को भी नहीं मिलेगा जो 18% चार्ज करते हैं अपने रेस्टोरेंट नहीं पे? मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा। मोटरसाइकिल सर उसके अंदर व्हीकल के अंदर ही आएगी सर। सर एक चीज और है, जो यहाँ पे अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो अगर कोई बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ना, आप अगर ठीक से देखेंगे तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स कैरिज व्हीकल्स हैं। हाँ, मोटर ट्रक व्हीकल के वगैरह अंदर है, कवर्ड नहीं है। ट्रक वेसल और वगैरह होगी सर। एयरक्राफ्ट के लिए यूज्ड है वो, अच्छा क्योंकि सर, जैसे लीगली भी आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेसिफिक व्हीकल आते हैं, इको कार आपने देखी है सर, जो ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए आती है ना, वो स्पेसिफिक आती है जिसमें सीट नहीं होती, तो वो सर कुछ जैसे कमर्शियल हम का चक्कर ट्रक है। मान सकते हैं, हाईवा मान सकते हैं, जो हैवी व्हीकल होती हैं। हाँ, उनका सबका क्रेडिट मिलेगा ना जी। अच्छा सर, वो तो बेसिकली वो बेसिकली दैट इज नॉट फॉर अ 13 कैपेसिटी नहीं है ना उसकी सीटिंग की। एग्जैक्टली सर। मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले जो कैरेज हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सीटिंग कैपेसिटी से मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे ट्रक के अंदर 2 सीटें होती हैं, एक आगे एक पीछे, वो बेसिकली बात पैसेंजर व्हीकल्स की कर रहे हैं हम यहाँ पे। सर वो तो पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा, ए के सेकंड क्लॉज में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में, तो वहां पे तो हम ट्रक और हाईवा वगैरह का ले सकते हैं सर। बिल्कुल बट मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन सर इससे रिलेटेड ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है, वो अपने फर्दरेंस और बिजनेस के लिए अपने गुड्स डिलीवर करने के लिए ट्रक लेती है, तब तो वो आईटीसी के लिए मतलब ले सकती है सर। बिल्कुल बट ले अगर सकती कोई है। ऐसी फर्म है जो ट्रेडिंग भी करती है प्लस जीटीए सप्लाई भी करती है और रजिस्टर्ड है, तो सर इसमें 2 केस मैंने देखे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे अपने व्यूज। पूछिए ना सर, पूछिए। सर इसमें केस ये है कि एक फर्म है जो ट्रेडिंग भी करती है स्टोन वगैरह की, जो ग्रिट होते हैं उसके, और उसने ट्रक खुद परचेज कर रखा है। स्टोन पे रेट है 5% सर। मैं प्रैक्टिकल इशू सर आपसे पूछ रहा हूँ, और स्टोन का जो पूछिए ना। जो स्टोन का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, 5,000 रुपीज होता है, बट जो क्वांटम अमाउंट होता है वो 45,000 उसके डीजल का होता है। टोटल इनवॉइस बनता है 50,000। तो इस केस में सर अगर हम 50,000 का इनवॉइस एट द रेट ऑफ 5% काटते हैं, उस पर हम स्टोन ही डालते हैं, तब तो ठीक है सर। मुझे लगता है कि हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, आउटवर्ड मेरा टैक्सेबल है, और हम 2 आईटीसी क्लेम कर लेंगे, स्टोन की भी और ट्रक की भी। बट इन केस अगर हम 5,000 रुपए का ग्रिड काट करके हम 10,000 में सप्लाई कर रहे हैं, प्लस हम उनसे 35,000 इन द नेम ऑफ। आवाज ब्रेक हो गई। हेलो सर, अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है, प्लीज सर। उसके बाद मेरा सेकंड केस ये था कि अगर हम इनवॉइसिंग करते हैं 10,000 रुपए की उनको स्टोन की, प्लस हम जीटीए वाला जो फ्रेट है उसका रिम्बर्समेंट, या उनको हम फ्रेट चार्जेस लिख करके देते हैं, जिसपे हम 12% नहीं लगा रहे, क्योंकि 5% नो आईटीसी केस है और 12% विथ आईटीसी केस है सर। जी। तो वहां पे अगर हम वो एग्जाम सप्लाई में ले जाते हैं, तो क्या वहां पे हमें प्रोपोर्शनेट ही आईटीसी मिलेगी ट्रक की? नहीं, फिर तो प्रोपोर्शनेट भी नहीं मिलनी चाहिए आपको। अच्छा, फिर वो जीटीए का अगर हम एग्जाम कर रहे हैं बिकॉज वो प्राइमरली यूज मानी जाएगी जीटीए के लिए। बट मैं ये कहूंगा सर, इस इंटरप्रिटेशन में ना एक कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। सर कंपोजिट सप्लाई में हमारा सेकंड गुड्स तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक स्टोन हुआ
और उसको डिलीवर करने में कॉस्ट आती है बस। आपकी बात मैं मानता हूँ, कॉस्ट ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की, मानता हूँ बिल्कुल, बट आपको ये पता है नेचुरली बंडल्ड है, ये प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की। हाँ बिल्कुल, स्टोन ग्रिट जा ठीक ही है नहीं ना, सकता है विदाउट। तो मेरा मानना ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है आपका और जो स्टोन वाला पार्ट है, दोनों का मिला के आपका कंपोजिट सप्लाई ही रहेगा वो। तो हम इनवॉइस 50,000 की करें सर, आप और 50,000 की इनवॉइस करें, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आइटम स्टोन लेके करें, उस पे जीएसटी जो भी रेट है वो आप चार्ज करें, और आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज आप ट्रक यूज कर रहे हैं, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा 100%। तो 5% अगर हम लगा रहे हैं तो सर कोई इशू नहीं आना चाहिए। नहीं कोई इशू, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल इशू नहीं आएगा सर। ठीक सर, एक इसी में सब पॉइंट और है, अगर हमारी ट्रक जो है स्टोन सप्लाई करने के लिए किसी एक्सप्रेस वे वगैरह के बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपको सप्लाई करेंगे, उन लोगों का कहना रहता है कि आप अगर हमको सप्लाई करते हो ग्रिट वगैरह तो आप हमें रिवर्स चार्ज का इनवॉइस मतलब शो मतलब सप्लाई करेंगे। तो उस केस में सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम रिवर्स चार्ज में दे रहे हैं तो हम टैक्स तो लगाएंगे नहीं, और मतलब अगर उनका हमने कहना वहां है कि आप जीएसटी चार्ज ना करें, चार्ज ना करें, वो अपना जीटीए सर्विस मानते हुए उसको रिवर्स चार्ज में खुद पे करते हैं। और चूंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है सर, क्लाइंट को बिजनेस चाहिए तो सबसे पहले यही चेक करता है कि मेरा बिजनेस आना चाहिए, उसे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से मतलब नहीं है। उस केस में अगर वो रिवर्स चार्ज का इनवॉइस जनरेट करके देता है तब ट्रक का आईटीसी लेगा कि नहीं सर? नहीं मिलेगा, नहीं because मिलेगा। if you are providing any services on which the tax is payable under the reverse charge, it is covered under the definition of exempt supply. ओके सर, तो इसलिए उसका नहीं क्रेडिट मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। अरे एक सर इसी से रिलेटेड और है मेरा, आप आपने प्लीज आप 16 सबसेक्शन बी में आपने हमको एक चीज बताई कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स होना चाहिए सर। हाँ, द मैंने गुड्स हैज बीन बी रिसीव्ड में बताई। हाँ बी में। हाँ, अब सर इसमें मेरा क्वेश्चन एक है कि जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ए टू बी, बी टू सी, तो बायर और शिपर का जो कॉन्सेप्ट है। मैंने अश्विन सर ने एक क्वेरी रेज करी थी कि मैंने एक्स फैक्ट्री गुड लिया और मैंने उसकी डिलीवरी वहां पे ले ली, तो और प्लस बिल टू शिप टू के अंदर भी क्या होता है, मैंने यहाँ से बिल रेज करा, जून मंथ में मैंने बिल रेज कर दिया, जो मेरे पार्टी है उसको क्रेडिट जब मिलेगा जब उसके पास माल पहुंच जाएगा बिल टू शिप टू में। ओके, मीन सर सी के पास जब माल पहुंचेगा तब वो डीम उसको टू जब भी हो मिलेगा, जाएगा। हाँ बिल टू शिप टू में। बट मुझे गुड्स क्योंकि रिसीव मान दिया जाता है, बट इसके अंदर थोड़ा इंटरप्रिटेशन इशू है, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है, अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट में लिखा हुआ है, एक मिनट हम देख भी लेते हैं, ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन के केस में, हम एक मिनट एक्ट पढ़ लेते हैं, एक्ट क्या कहता है, एक मिनट दीजिए, हम उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं ना, इसको इशू को खत्म करते हैं। तो अश्विन जी का भी क्वेश्चन था ये। बेसिकली देखो, अगर इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़े, सेक्शन 16 सबसेक्शन बी की बात करें, आप लोग भी सब बेसिकली लॉ रीडर हो, तो ये कहता है कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, बट उसके बाद वो प्रोवाइजो कहता है इट हैज बीन डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स as the case may be services when the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of good, either by way of transfer of document of title or otherwise। तो इसकी इंटरप्रिटेशन अगर मैं बात करूं तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब गुड्स उसको मिल गए, यानी ए से मैंने ए ने माल लिया बी से और भिजवा दिया सी को, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर जब तक सी को नहीं मिला तब तक वो नहीं माना जाएगा आपको मिल गया। ओके सर, उस केस में हम तब इनवॉइस जनरेट करें, ए बी को जनरेट करता है, बी सी को करता है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इनवॉइस तो हम आप लोग सेम डे जनरेट कर देते हैं। हाँ, सेम डेट कर देते हैं, सेम टाइम पे कर लेते हैं, ये हो रहा है। हाँ, तो सर ये तो फिर गलत हो जाएगा कि हम अपने यहाँ जो गुड्स रिसीव दिखा दिए स्टॉक में और फिर उसको फर्दर। मैं इस पे बेसिकली आयुष जी एंड अश्विन जी,
आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक विद द ऑडियंस टू, मैं इस पे थोड़ा और एनालिसिस करता हूँ कि मुझे लॉ की बैकिंग कहाँ मिलेगी। जो मैं आज कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, ए ने बी से माल लिया और सी को भिजवाया, और उसने ए ने बी को बिल रेस कर दिया जून में, बी ने सी को बिल रेस कर दिया जून में, बट सी के पास माल पहुंचा जुलाई में सर 1 तारीख को पहुंचा, तब सर वो 1 तारीख को पहुंचा। तो हाँ। मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये आ रही है कि इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जुलाई में मिलना चाहिए जी। बट स्टिल आई विल कम बैक टू यू बिकॉज इंडस्ट्री प्रैक्टिस चल रही है कि वो क्रेडिट जून में लिया जा रहा है। ओके सर, वन मोर थिंग सर, अगर वो मेरे 2B में जून में ही शो कर रहा है और हमने जुलाई में अपने यहाँ इनवॉइस बुक किया हुआ है, तो उस केस में जब हम जून का भरते हैं तो एक्सेस हमारे पास आईटीसी शो करता है उसमें। हाँ, बट अगर हम जुलाई भरेंगे तो वो डेफिसिट हो जाता है। उस बिल्कुल केस में बिल्कुल क्या करना चाहिए सर? उस केस में आयुष जी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इशू करा गया है, जिस सर्कुलर ने कहा गया है, हाँ अश्विन जी ने एक चीज ऐड करी है आयुष जी आपके लिए, कि अभी जो चेंज आया है ना रिसेंट, अब 5% फॉरवर्ड चार्ज में भी आप जीएसटी वो चार्ज कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टर का केस है ना, उसके अंदर आप 5% लगा के भी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर बिल रेस कर सकते हैं। और आईटीसी मिलेगा सर? बट 5% का रेट अश्विन जी विदाउट आईटीसी है। हाँ, वही प्रॉब्लम आती है सर। तो वो मिलेगा नहीं सर। सो आयुष जी हम बात कर रहे थे कि आपका जुलाई में गुड्स आया है बट 2B में आपके पास जून में आ रहा है, तो जून के अंदर सर्कुलर कहता है कि आप जून के अंदर उसे 4B2 के अंदर रिवर्सल में डालेंगे। अच्छा, 4B2 में, ठीक है, और फिर जब आप नेक्स्ट मंथ जुलाई की रिटर्न भरेंगे तो आप एनी अदर आईटीसी में उसे जोड़ के लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। सर एक चीज और बता दें, अप्रैल मई में जो ये प्रॉब्लम आ रही थी 2B वाली, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने तो ट्वीट करके सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया था। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आ रही है कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको नोटिस इशू कर रहे हैं कि आपका अप्रैल और मई का 2B और 3B रिकंसाइल नहीं मैं हो सभी रहा है। व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहूंगा आयुष जी, हाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आयुष जी, 2B एक इंफॉर्मेशन है बट सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट है, बट सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट 2B नहीं है। तो जैसे हमने कहा गुड्स नहीं आए, अगले महीने आए तो क्रेडिट अगले महीने मिलेगा, इनवॉइस नहीं है तो क्रेडिट जब इनवॉइस आएगा तब मिलेगा। तो मुझे सारी कंडीशन फुलफिल करनी है। प्रैक्टिकली बहुत लोग क्या कर रहे हैं, 2B में जो भी क्रेडिट आया, क्योंकि वो रेड निशान से डरते हैं, तो चाहे वो गलत आया सही आया उस क्रेडिट को क्लेम कर रहे हैं। बट मेरा कहना यह है 2B को आप रिकंसाइल करें, जो क्रेडिट आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, जो इनएलिजिबल है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपकी सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो आपको नहीं मिलेगा। तो सर जो अप्रैल मई में टेक्निकल फॉल्ट आई थी उसके लिए जो नोटिस इशू हो गए हैं, उसके क्लैरिफिकेशन में हम कोई नोटिफिकेशन वगैरह गवर्नमेंट ने इशू किया जो लगा सकते हैं? नहीं, आपको नोटिस किस चीज का आया है वो बताइए ना सर। सर नोटिस आया है कि हमारा 2B और 3B का रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है और हमने एक्सेस आईटीसी 3B पे क्लेम किया है, जबकि गवर्नमेंट का ट्वीट था कि वो टेक्निकल इशू की वजह से कुछ इनवॉइसेस नहीं शो कर रहे हैं, आप अपना 3B क्लेम मतलब क्लेम कर सकते हैं 3B में सर। नहीं बताए इसमें आयुष जी क्या हुआ, असल में क्या है, अब मैं इस माध्यम से क्या बोलूं, आप सबको पता है जीएसटीएन इज प्लेसिंग अ रोल लाइक अ लॉ मेकर। अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई सर्कुलर नहीं आया, जीएसटीएन ने जस्ट ट्वीट कर दिया, एक अपने पोर्टल पे डाल दिया कि अभी आप 2B को इग्नोर करके आप 3B फाइल कर सकते हैं। यस सर, बट ऑफिसर्स आर बट इशूइंग द नोटिस। सुनिए मेरी बात, उसे क्या करा गया, 2 दिन बाद विड्रॉ कर दिया गया और 2 दिन के अंदर डेट एक्सटेंड कर दी गई 24 तारीख। और फिर क्या करा गया, क्या कहा गया स्पेशली कि आप अपनी जब अप्रैल की रिटर्न फाइल करें तो उसे 2B को रिकंसिल, लीगली मेरे पास बैकिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है अश्विन जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ सर। तो आयुष जी वो बेसिकली जो ऑफिसर कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि भाई आपका 2B में नहीं आ रहा था, आपने क्रेडिट क्यों लिया। तो ठीक कह रहा है, बट अब क्लाइंट तो बट हमसे अभी कहता है। बट मैं अभी एक बात कह रहा हूँ, अगर उसने 1 में ठीक से रिटर्न फाइल कर दी थी आयुष जी, तो अब जब आप आज 2B डाउनलोड करेंगे अप्रैल का तो उसमें आ रहा होगा। ठीक है सर, हम रिकंसाइल करके आप रिकंसाइल करके ऑफिसर को उसका जवाब दें। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक, वेरी थैंक यू गुड सर। ऑडियंस, एंड आई लव टू
डू दिस वेबिनार्स, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी एक पेंडिंग क्वेरी मैं लेके जा रहा हूँ आयुष जी की और अश्विन जी की, कि भाई अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे कोई गुड्स या एक्स फैक्ट्री कोई गुड्स मैंने लिया तो उसका क्रेडिट मुझे कब लेना है। दिस इज पेंडिंग ऑन माय हैंड एंड सुमित जी आई विल आंसर दिस एंड वी विल डेफिनेटली कम्युनिकेट टू यू आयुष जी एंड अश्विन जी। Thank you, Ankit ji, for your wonderful presentation as always. And I hope everyone is satisfied with your knowledge. And we will meet you again tomorrow. And thank you for wonderful deliberation, Ankit ji, once again. And thank you to each participant. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.